ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਡੋਲ ਮਾਈਂਡਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਾਈਫ ਮੋਡਿਊਲ 1 ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਰ ਆਰ ਟੋਟਲ 12 ਮੋਡਿਊਲਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਡਿਊਲਸ हैं। कोई 1 घंटे ਦਾ, ਕੋਈ ਸਵਾ ਘੰਟਾ, 1.5 ਘੰਟਾ। तो जो ਅੱਜ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਿੰਗ ਅਪ ਪਾਰਟ 1 ਟੂਡੇ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਸੈਟਰਡੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 2 ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਪਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ हैं। So with this I am now starting the presentation। तो जो पार्ट 1 है वो है बियॉन्ड द अर्थ, जो धरती तो परे। इस दे बारे जो गुरबाणी विचार हैं या जो साइंटिफिक व्यूज हैं वो असी कवर करांगे। और पार्ट 2 जो है वो इवोल्यूशन एंड लाइफ के बारे होएगा। तो जो पहला सब्जेक्ट है बियॉन्ड द अर्थ, इनफैक्ट मॉड्यूल 1 ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 11 ਮੋਡਿਊਲ हैं वो अलग-अलग सब्जेक्ट्स ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕੀਤੇ हैं। तो what we are trying to basically tell here is that जो आज की डेट ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਡਰਨ ਕਨਸੈਪਟਸ हैं, ਥਿਉਰੀਜ਼ हैं, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟਸ ਐਂਡ ਥਿਉਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 400 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। So beyond the earth is the first part of the first module। So let us try to walk a few steps with Guru Nanak away from this planet into the realm of space। तो सानू गुरु नानक साहब दे नाल चलण लई असीं उन्हां दी स्पीड नाल ते नहीं चल सकदे जिस स्पीड नाल गुरु नानक साहब चलदे हैं। और पर किथे किथे गुरु नानक साहब अपने कदमां दे निशान छोड़ गए हैं। उन्हां कदमां दे निशानां नूं लभ के ही अगर असीं थोड़ा बहुत भी समझ पाइए कि गुरु साहब की कहना चाह रहे सन ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਐਟਲੀਸਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਵਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਲਾਈਟ ਆਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ। तो ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਮੋਡਿਊਲ 1 ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਲੈਜੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਲੂ ਕਲਰ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ट्रांसलिटरेशन है मतलब जिदे की एज इट इज़ उन्होंने ट्रांसलेट किया गया विदाउट फाइंडिंग वट इज़ द रियल मीनिंग वो असी ब्लू बॉक्स के विच है। जिथे असी गुरबाणी लिखी है उसके नाल अगे असी अंग नंबर और मैला जिमें पंजवां इत्थे M5 लिखा मैला पंजवां इस तरह असी डिपिक्ट करने की कोशिश की है। जो गुरु साहब की अप्रोच रही है मनुखता के लिए मैनकाइंड ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੋ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ व्यू है ਉਹਨੂੰ ਬਲੂ ਕਲਰ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵਾइन नॉलेज है जो कि इनवर्ड जर्नी या ਅਸੀਂ कह सकते हैं इटर्नल ट्रुथ है। तो जो साइंटिफिक व्यूज है वो आउटवर्ड जर्नी है और वो ਜਿਹੜੇ ਨੇ ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स हैं। तो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ जो अवे फ्रॉम दिस अर्थ जो साडी नॉलेज है जो गुरबाणी के आधार पर है उसके विचकार सानू की सेध मिलती है। जो मनुख है बेसिकली जिवें कि गुरबाणी भी आया है अंत न जापे कीता आकार अंत न जापे पारावार अंत कारण केते बिल्लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने कोई बहुता कहिए बहुता होए। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ कह रहे ने अंत न जापे कीता आकार। आकार वर्ड जो है वो क्रिएशन के लिए आया है। बहुत थावां ते जो आकार है परमात्मा की क्रिएशन भी यूज होया है। तो अंत न जापे कीता आकार परमात्मा तेरी किन्नी को वड्डी ये सृष्टि है ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ अंत नहीं पा सकते। अंत न जापे पारावार उस सृष्टि के विचकार
एक परिवार है, मतलब तरह तरह के जीव जंत हैं, बहुत सारी, मतलब जिवें कि ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ 84 ਲੱਖ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ 84 ਲੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਕਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, पर ताके अंत न पाए जाए, पर उसका अंत कभी भी कोई नहीं पा पाएगा, उसका अंत पाया ही नहीं जा सकता। एहो अंत न जाने कोई बहुता कहिए बहुता होए, इस अंत ਨੂੰ ना ही कोई कह पाएगा ना जान पाएगा, और जितना किया जाएगा और ये पता लगेगा इतना ही होर सानू जितना जितना ਅਸੀਂ गहराई जावांगे सन लगेगा कि सन ते जितना आए हैं उस तो भी हुण होर ज़्यादा जाना जो सोचा सी। तो जितनी ज़्यादा असी गहराई जावांगे सन लगेगा अजे उतना ही ज़्यादा जानन दी पिया होया है। तो बहुता कहिए बहुता होए, पर एक जो मनुख है उसकी जो जिज्ञासा है वो हमेशा बनी रहती है, और कुछ ना कुछ इंसान जानन की जरूर कोशिश करता है अपनी एग्जिस्टेंस के बारे, अपने यूनीवर्स के बारे, अपनी जो भी पिछोकड़ रही है वो बारे। तो जितना भी असी एक्सप्लोर करांगे साडी जो मिस्ट्री है वो ज़्यादा तो ज़्यादा डीप होती चली जाएगी। पर यह नहीं है कि असी जानन की कोशिश नहीं करनी। जितना कोई भी जान सकते हैं उसनू समझ सकते हैं, उसकी क्रिएशन नू समझ सकते हैं, उसके हुक्म नू समझ सकते हैं, वो एक कोशिश बनी रहनी चाहिए। ये जानते हुए भी कि इसका कोई अंत नहीं पाया जा सकता। असी स्टार्ट जो लै रहे हैं वो एक टॉपिक तो लै रहे हैं जिवें सृष्टि का ओरिजिन है, वही साडा ओरिजिन है किते ना किते, क्योंकि उस सृष्टि के बनन तो बाद ही असी अज इस स्टेज में आए हैं जिथे असी मनुखा जन्म के विच रह रहे हैं। तो जो साडा ओरिजिन है उस सृष्टि का ही ओरिजिन है, और गुरु साहबान ने जो क्या है कि उस तो पहले की सी सृष्टि के होने तो पहले, तो सृष्टि के होने तो पहले गुरु साहब का फरमान है, अरबद नरबद धुंधु कारा धरण न गगना हुक्म अपारा। इस सारे दे सारे वर्ड सी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और सानू बहुत ज़्यादा डीपली और ध्यान नाल समझण दी लोड़ है। अरबद कहते ने 10⁻⁹, यानी कि जो अरब है, जो अपनी पुरानी गिनती है वो जो अजकल के बच्चे शायद ये टर्म नहीं ज़्यादा यूज़ करते, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार लख करोड़ अरब खरब नरब नील पदम संख वो साडी एक भाषा होंदी सी। तो गुरु साहब ने कहा कि अरबद नरबद, नरबद मतलब कि बियॉन्ड द काउंटिंग सिस्टम, ते अरबद नरबद धुंधुकारा, वो काउंटलैस पीरियड तक काउंटलैस जो भी जगह सी उत्थे सिर्फ ते सिर्फ डार्कनेस सी। देयर वाज ए टाइम व्हेन इट वाज कंप्लीटली डार्क। और धरण न गगना हुक्म अपारा, एक थोड़ा जिहा सानू ज़्यादा गहराई विच समझण दी लोड़ है। वो इसलिए कि जो इतने जो गल हो रही है अरबत नरबत धुंधुकारा की, दैट मीन्स जो ल्यूमिनस बॉडीज हैं लाइक स्टार्स हैं, स्टार्स एंड गैलेक्सीज के विचकार जितनियां भी बॉडीज लाइट देंदियां वो है ही नहीं सी, क्योंकि टोटल धुंधुकारा सी। धरण न गगना, धरण इतने जो है एक तरह नाल की जो प्लैनेट्स हैं जो वो भी नहीं सन, इतने ल्यूमिनस बॉडी ते नहीं सन। और एक धरण न गगना हुक्म अपारा, गगन जो वर्ड आया है गुरबाणी दे विच बहुत ही जगह ते उस स्पेस के लिए आया है कि अर्थ भी नहीं सी और स्पेस भी नहीं सी, पर उदा एक हुक्म फिर भी सी, एक उदा हुक्म अपार हर जगह ते फैलिया हुआ सी। धरण न गगना हुक्म अपारा, पर उदा अपार हुक्म पूरी तरह नाल फिर भी फैलिया सी। हुण असीं इत्थे आके थोड़ा जिहा होर विचारण की लोड़ है कि एक गगन ते जिन्हों असी आसमान कहते हैं, ये आसमान नहीं है, स्पेस है। आसमान तो अज भी नहीं है। असी बेसिकली जो रंग देखते हैं आसमान का ब्लू कलर, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट ओनली, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जिवें कि होराइजन की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होंगी। सानू दूरों जो एंड दिखाई देता असीं होराइजन कहते, जदों उत्थे कोई होराइजन नहीं होंदा, वो अगे खिसक जाता। इसी तरह कोई आसमान ते एग्जिस्ट नहीं करता, पर स्पेस जरूर एग्जिस्ट करती है। तो कह रहे हैं धरण न गगना, ना तो प्लैनेट्स हैं ना ही उन्होंने इंटरमीडिएट कोई स्पेस भी सी, वो कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है ही नहीं सन। फॉर एजेस एंड काउंटलेस पीरियड देयर वाज अटर डार्कनेस विदाउट सेलेस्टियल बॉडीज विच इज मैटर एंड स्पेस।
आके ना थोड़ा जिहा कई बार धोखा भी खा जाते हैं कि ਅਸੀਂ ਇਹ सोचते हैं कि जो स्पेस है वो किस तरह नहीं सी। अगर कुछ भी नहीं सी स्पेस तो फिर भी होएगा। एक आम अगर ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ अगर ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो यही लगता भी ਜਦੋਂ कुछ भी नहीं सी ਤਾਂ स्पेस ही होएगा ना। फिर गुरु साहब क्यों कह रहे हैं धरण ना गगना हुक्म अपारा, कि वो गगन और स्पेस भी नहीं सी। बट जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ਅਸੀਂ जो स्पेस का कॉन्सैप्ट है वो स्पेस का जो कॉन्सैप्ट है उन्होंने डिफरेंट तरीके नाल लिया। जो रियलिटी है ਜਦੋਂ स्पेस ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ स्पेस समझते हैं वो एक्चुअल स्पेस कुछ होर है और एक एम्प्टीनेस कुछ होर है। ये दो अलग अलग चीज़ां हैं। चलो ਅਸੀਂ थोड़ा अगे चल के देखते हैं। when no matter exist is the space not there। एक सवाल आता है सामने कि ਜਦੋਂ कोई भी मैटर नहीं सी फिर की स्पेस नहीं सी उस जगह ते। अगर वो नहीं सी तो फिर वो की चीज़ सी। आई थिंक जो भी साइंस नाल नहीं भी रिलेटेड अपने थोड़ा जिहा विचारण ते कोरिलेट कर सकते हैं भी अगर कोई भी चीज़ नहीं होएगी फिर तो स्पेस ही होएगी ना। बट वो फैक्ट नहीं है। हुण असीं देखते हैं जिवें कॉन्सैप्ट ऑफ स्पेस है कि वो गगन की चीज़ है। ये मान लीजिए असीं एक अर्थ है और एक अर्थ के दूर कोई साडा एक मान लो रॉकेट जा रहा है। असीं कहंदे रॉकेट स्पेस दे विच चला गया तो वो जिहड़ी स्पेस है हर जगह जिथे या कोई भी मैटर नहीं है उस जगह नूं असीं स्पेस कह दिंदे आ। बट रियलिटी दे विचकार इस स्पेस दे विचकार कुछ फोर्सिस ने, कुछ अनसीन फोर्सिस ने। लाइट वाले नूं ईथर कहंदे ने कि इहदे विचकार ईथर है जिहदे थ्रू लाइट चलती है। जो बाकी साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि इहदे विचकार कोई होर मीडियम है जिसदे थ्रू इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स चलदियां ने। अगर कुछ भी नहीं होएगा तो वो प्रोपेगेशन हो नहीं पाएगा। इसका मतलब कि जब सैलेस्टियल बॉडीज या जो भी सृष्टि बनी है उहदे नाल ही स्पेस दे विचकार एक फिलिंग मैटीरियल सी जो किसी नूं समझ नहीं आ रहा बट वो हेल्प कर रहा है इस पूरी दी पूरी सृष्टि नूं चलाउण विच डिफरेंट फोर्सेस। वेरएज अगर ये कुछ भी सैलेस्टियल बॉडीज नहीं होणगियां, स्टार्स नहीं होणगे, मून नहीं होणगे, प्लैनेट्स नहीं होणगे तो इस स्पेस का भी कोई मायने नहीं है। विचकारों की हट जाएगी और टोटल एम्प्टीनेस होएगी। तो गुरु साहब कहते हैं कि स्पेस भी नहीं सी। और साडे कोल जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि स्पेस एंड टाइम कॉन्सैप्ट है वो एक जर्मन साइंटिस्ट हुए हैं। उन्होंने 1908 में किया है कि सृष्टि के क्रिएट होने तो पहला स्पेस नहीं सी, एम्प्टीनेस सी। ये जर्मन साइंटिस्ट हैं हरमन मिन्कोव्स्की। उन्होंने जो फर्दर रिसर्च की वो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ गई सी ਉਹਦੇ बेसिस ਤੇ रिसर्च करके दसिया कि स्पेस भी नहीं सी। और असी अगर विचार के देखिए तो गुरु साहब भी कह रहे हैं धरण न गगना हुक्म अपारा। तो उस वेले इस स्पेस भी नहीं सी। गगन वर्ड बाणी बहुत जगह आएगा और इतने ज़्यादा तो ज़्यादा तुम देखोगे स्पेस के लिए ही इस्तेमाल होया। उस टाइम स्पेस भी नहीं। और एक बड़ी वड्डी मिस्ट्री है कि गुरु साहब जदों ये गल कर रहे हैं तो 1908 तक जदों इस स्पेस वर्ड की साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं हुई तो लोगों ने इनू किनू किस तरह नाल समझा होएगा। एक बड़ी मिस्ट्री जी है कि साहब तो कह के चले गए आने वाले समय उन्होंने पता सी किसी न किसी तरीके नाल गगन दोबारा डिफाइन होएगा। बट वो किस तरह लोगों ने लिया होएगा कि कह रहे हैं स्पेस भी नहीं है। हुण अगर असीं साइंटिफिक व्यू लैके चलीए तो जिस तरह असीं इत्थे मार्क करते हैं येलो सिंबल नाल, साइंस कहती है मैटर स्पेस एंड टाइम वर नॉन एग्जिस्टेंट बिफोर द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। वट इन्फ्लुएंस क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स इज नॉट नोन। ये चीज़ां नहीं सन, ना मैटर ना स्पेस ना टाइम क्रिएशन तो पहले नहीं सन। और साइंस ये कहती असीं नहीं जानते कि किस चीज़ नाल इन्फ्लुएंस होके क्रिएशन सामने आई है। वेरस गुरु साहब का फरमान है हुक्म अपारा। अगर जिस टाइम कुछ भी नहीं सी उस परमात्मा की अपार शक्ति फिर भी एक हिडन रूप के पिछे सी जो कि अज भी अदृश्य और तां भी अदृश्य ही सी। वो अदृश्य शक्ति ही अज भी क्रिएशन में चला रही है। तो जिते साइंस कहती है असीं कुछ नहीं जानते उस तो पहले की सी, उत्थे गुरु साहब कहते हैं जदों ये सब कुछ नहीं सी अरबत नरबत धुंधुकारा, जदों की टोटल डार्कनेस सी, ना धरतियां सन ना प्लैनेट ना स्पेस सी, उस टाइम परमात्मा का एक अपार हुक्म तां भी सी। अगर तुहाडे क्वेश्चन होण तुसीं नोट कर सकते हो, असीं बाद डिस्कस कर लांगे। तो असीं अगे चलते हैं।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਕਬੀरदास जी ने जिथे फरमाया है, बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई, बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवे अकेला। वो कह रहे ने बाजीगर उन्होंने परमात्मा ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜੀਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਸ ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਟੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਜੀਗਰ ਡੰਕ ਬਜਾਈ, ਬਾਜੀਗਰ ਨੇ मतलब बैंग ਕੀਤਾ, एक डंका बजाया, सब खलक तमाशे आए, इस क्रिएशन का तमाशा शुरू हो गया, बिगनिंग हो गई, तमाशे की सामने मतलब प्रगट होके आई। बाजीगर स्वांग सकेला, स्वांग सकेला मतलब जो अपने गेम नू निपटा के लपेट लेगा, अपने रंग रवे अकेला, वो दोबारा अपने रंग दे विच फिर उसी तरह कला रहेगा जिस तरह की पहले सी ओ क्रिएशन तो पहले। तो एक बहुत ही पावरफुल गुरबाणी तो सानू मैसेज मिलता है कि परमात्मा ने एक डंके दे नाल, एक आवाज़ कह सकते हैं, डंका मतलब बैंग दे नाल इस धरती, इस सृष्टि ਨੂੰ शुरू किया, जिसदा कि दा तमाशा शुरू होया। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਂਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਥਾਟਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੀ दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते कि इस तरह के विचार 700 साल पहले गुरु साहब रख रहे हैं। और मतलब कि उन्होंने दे असी की सोचिए कि मतलब उस टाइम उन्होंने कोल की ज्ञान सी, ज्ञान कित्थों आ रहा सी, गुरु नानक साहब को ज्ञान कित्थों आ रहा सी, कबीरदास जी को ज्ञान कित्थों आ रहा सी कि इस तरह नाल सृष्टि शुरू हुई। ये एक उन्होंने जो बेसिकली असी जो जो जावांगे कि वो अपनी अंदर की यात्रा शुरू की उन्होंने, तो उन्होंने सारा ज्ञान मिलया जिहड़ा कि असी सुनिया की पौड़ी विच भी जाके सुनिए, धरत तवल आकाश, मतलब इन्हां दे बारे ज्ञान अपने आप प्राप्त होंदा जदों असी अंतरात्मे की आवाज़ तक पहुँचना, उस सुनना सीख लैंदे हां। तो ये सी साडे क्रिएशन ऑफ यूनीवर्स के बारे। और अगर असी ये कहिए तो जो साइंटिफिक व्यू है वो भी है कि अज तो 1380 करोड़ साल पहले, 13 अरब 80 करोड़ साल पहले एक बैंग होया, एक धमाका होया जिहदे नाल कि ये सृष्टि शुरू हुई। ये थ्योरी पहला डिबेटेबल सी बड़े साल तक, पर 1960 दे विच ये एस्टैबलिश कर दी गई है। और 1960 में एस्टैबलिश करने तो बाद फिर किसी ने अज तक नहीं कहा कि अर्थ सृष्टि जी बिग बैंग नाल नहीं हुई। अगे दियां जितनियां भी साइंटिफिक डिस्कवरीज चल रही हैं वो भी यही कहंदियां कि धमाके दे नाल, बैंग दे नाल अज तो 13 अरब 80 करोड़ साल पहले इस सृष्टि शुरू हुई थी। ये जो नंबर है इहदे च अगर 1% की भी चेंज आता है, अगर सिर्फ 1% का भी चेंज आता है तो वो मतलब ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। तो अगर उसकी एक्यूरेसी की गल करिए तो वी डोंट नो एग्जैक्टली कदों सृष्टि एक्चुअल फॉर्म च आई है, बट उन्होंने एक नंबर दे रही है जिन्होंने असीं चलो कहते हैं ठीक है कह रहे हो तो मान लेंगे हैं, बट ये रियलिटी के विचकार कोई नहीं जानता एग्जैक्टली वैन डिड शुरू हुई। उहदे उत्ते गुरबाणी के व्यूज़ और साइंस के व्यूज़ बिल्कुल सिमिलर है। ਹੁਣ अगर असी क्रिएशन ऑफ यूनीवर्स की गल करिए, इट इज़ द ग्रेटेस्ट मिरेकल्स ऑफ ऑल टाइम्स। ये इतना वड्डा मिरेकल हो ही नहीं सकता जितना कि एक क्रिएशन ऑफ यूनीवर्स दे विच होया है। इट इज़ मिरेकल ऑफ ऑल मिरेकल्स इन द यूनीवर्स कि जो क्रिएशन सामने आई है। और उहदे जो चांसेस है सामने आने दे, साइंटिफिक जो अपने तरीके नाल लगांदे हैं भी अगर ए हुंदा, बी हुंदा, सी हुंदा, डी हुंदा, सारी चीज़ों को मिला के देखिए और कॉम्बिनेशन बनाइए कि चांसेस हैं कि यूनिवर्स क्रिएशन आ सकता है। तो जो साइंटिफिक पोस्टुलेट है वो कहता है कि ये 10 क्विंटिलियन 1 to 10 क्विंटिलियन के रेशियो है कि ये हो सकता सी। उहदे चांसेस 1 तो 10 क्विंटिलियन, दैट मीन्स 10⁻90 के सामने कला चांस सी कि अर्थ की क्रिएशन यूनिवर्स सृष्टि की क्रिएशन होएगी। पर उस सिचुएशन जी है वो साढ़े सामने अज की रियलिटी है। क्रिएशन हुई है, असी क्रिएशन का पार्ट हाँ। तो एक परमात्मा ही है जो इतने बड़े बड़े मिरेकल्स खेड सकता है, इतने बड़े मिरेकल्स कर सकता है, और परमात्मा ही जानता है कि सब मिरेकल्स किस तरह पॉसिबल हो जाते हैं।
तो क्रिएशन बाय क्रिएटर इनू ਅਸੀਂ जो एक ओंकार है ਉਹਨੂੰ एक बार दोबारा क्रिएटर एंड क्रिएशन की कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करते हैं। तो जो एक ओंकार गुरु साहब ने सानू वर्ड दिता है वो है ओम एंड कार। दैट मीन्स एक तो बाद ओम है और उस तो बाद कार है। तो ओम जो है वो क्रिएटर ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रहा है, कार जो है क्रिएशन ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों ਨੂੰ मिला दो तो एक हो जाता है। एक इज क्रिएटर प्लस क्रिएशन बोथ पुट टुगेदर आर वन। और ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਫੀ डिटेल विचार करांगे। तो जो कार लगाया गया है वो क्रिएशन के लिए रिप्रेजेंट करता है और बहुत सारे गुणी ज्ञानियों ने इसी तरह नाल इसकी व्याख्या भी की है। एक ओंकार दैट इज क्रिएटर एंड क्रिएशन पुट टुगेदर इज वन। पर ये बड़ा स्पष्ट है क्योंकि क्रिएशन हैज कम आउट ऑफ द क्रिएटर और जो इसकी शेप भी है कि ये बनता है और फिर खत्म भी हो जाता है। और इस उत्ते भी काफ़ी होर डिस्कशंस हैं बट असी ज़्यादा डिटेल्स नहीं जा रहे। तो जो एक ओंकार का कॉन्टेक्स्ट है वो भी क्रिएटर एंड क्रिएशन को कंबाइन करके एक करन का ही कॉन्टेक्स्ट है। हुण सवाल है अंदर वाई डिड ही क्रिएट द क्रिएशन, उन्होंने की लोड़ पई सी की क्रिएशन बनाई। ये सवाल पूछा भी जाता है। साडे दिमाग भी कई आंदा भी एक परमात्मा नूं की लोड़ सी क्रिएशन बनाने की। ते सानू ये हुक्म की पौड़ी दे विच जो सब नाल पहली पंक्ति दे विच लिख दिता गया है हुक्मी आकार हुक्म न कहा जाए। हुक्मी होवन तो उदी कमांड के थ्रू यूनिवर्स क्रिएट होया है। और इस सवाल नू खड़ा ही नहीं करो कभी भी कोई इस चीज का जवाब नहीं दे पाएगा कि परमात्मा ने क्रिएशन क्यों बनाई है। हुक्म न कहा जाए। ये जो आकार है क्रिएशन ਲਈ आया है। हुक्मी होवन आकार उदी हुक्म दे नाल क्रिएशन हुई है और हुक्म न कहा जाए उस हुक्म नू कभी भी कोई भी नहीं दस पाएगा। और ये बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग जा मतलब एक फिनोमिना जो होया है। और सिमिलर व्यूज जड़े ने वो आइंस्टाइन ने रखे। आइंस्टाइन कहते हैं आई वॉन्ट टू नो वट वर द ओरिजिनल थॉट्स ऑफ द गॉड व्हेन ही क्रिएटेड द यूनिवर्स एंड रेस्ट ऑल इज डिटेलिंग। कहते मैं इतने साल डिटेलिंग च रहा हाँ पर मैं अजे भी ये नहीं समझ पाया कि परमात्मा ने यूनिवर्स क्रिएट आखिर क्यों किया है। जो दुनिया का सब नाल वड्डा साइंटिस्ट है उन्हें भी यही सवाल उठाया। वो कहते बाकी तो सब डिटेलिंग है, उस तो बाद का काम तो बहुत छोटा सी। पर वो किहड़े थॉट सी परमात्मा के जिहदे नाल कि उन्हें एक क्रिएशन क्रिएट की है। तो असीं अगे चलते हैं। अगे भी बाणी चाहता है ज्योतिष भाणा तां जगत पाया बाज कला आदान रहाया। तो जदों ही क्रिएटेड यूनिवर्स वैन ही प्लीज उसकी मर्जी सी उन्होंने कोई अज तक कुछ नहीं पाया कुछ भी नहीं पाएगा। ही कुड डू इट विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। उन्होंने किसी ने आके नहीं कहना सी। उहदे कोल इंटरनली सारिया पावर सी जिहदे नाल उन्हें कीता। एंड आफ्टर दैट स्टार्टेड एक्सपेंडिंग आडान रहाया। आडान अड असीं कहंदे हां वखरा कर देना वखरा और आडान हुंदा परे ले जाना या फैल जाना या स्ट्रैच कर देना। आडान हुंदा स्ट्रैच करना दूर ले जाना। वो अड तो आया हुआ वर्ड है वखरे वखरे तो आडान रहाया। उस तो बाद वो एक्सपेंड होना शुरू हो गया बिना किसी इन्फ्लुएंस के। और बाज कला मतलब उन्होंने किसी होर दे इन्फ्लुएंस की लोड़ नहीं सी और एक्सपेंशन शुरू हो गया। हुण असीं अगर एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की ही गल करिए इत्थे गुरु साहब कहते हैं विरले को गुरु शब्द सुनाया कर कर देखा हुक्म सबाया खंड ब्रह्मंड पाताल आरंभ है गुप्त हो प्रगट आएगा। जदों ये बिग बैंग होया ये जो पंक्तियां हैं उसी शब्द के अगे चल के हैं। ते विरले को गुरु शब्द सुनाया। जिस असीं शब्द की गल करांगे जिस नाम की गल करांगे जिस डिवाइन पावर की गल करांगे वो जिहड़ी पावर उन्होंने असी अनहद नाद भी क्या है। तो वो एक अल्टीमेट स्टेज होंगी है जिहदी असी कहते हैं डिवाइन रस्ते से चलते हो जो अनहद नाद असी सुन सकते हैं और ये सारे भेद खुलने शुरू हो जाते हैं। वो कहते किसी विरले ही उत्थे तक पहुंचा है जिन्हों वो भेद खुलिया होएगा कि ये अनहद नाद और किस तरह क्रिएशन के बारे क्रिएशन के फंडामेंटल्स की हैं। कर कर देखा हुक्म सबाया उन्हें तो करके अपना हुक्म के थ्रू जो भी है करन तो बाद he is basically taking full control of it। नाल दे नाल कह रहे हैं खंड ब्रह्मंड पाताल आरंभ है गुप्त हो प्रगट आएगा। उस तो बाद उन्हें खंडा नू ब्रह्मंडा नू लाइक गैलेक्सीज नू स्टार्स नू पाताल मीनस जिहड़ियां प्लैनेट्स हैं तो ये सारे आरंभ हो गए बनने। गुप्त हो प्रगट आएगा जो परमात्मा अज तक टोटली गुप्त रूप सी
जो ही सृष्टि बनी उस तो बाद वो प्रगट होने लग गया। और अगर ਅਸੀਂ साइंटिफिक व्यू देखिए तो साइंटिफिक व्यू बिल्कुल यही है that creation of universe is physical form is mysterious phenomena. However, after the Big Bang, universe started expanding, and for billions of years, new galaxies, stars, planets have been coming into existence. वो ਹੁਣ भी बनी जा रहे हैं, अजे भी कई गैलेक्सीज ਦੇ ਵਿੱਚ कई स्टार्स बन रहे हैं, कई प्लैनेट्स बन रहे हैं, वो सिलसिला अजे भी चलता जा रहा है। डज यूनिवर्स हैज ए लाइफ कि यूनिवर्स की भी लाइफ है, जिवें एक इंसान की ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 70 80 90 साल 100 साल लाइफ है, कि यूनिवर्स की भी लाइफ है। तो इतने गुरु साहब का फरमान है, जो उपजो सो बिनस है परो आज कै काल, नानक हर गुण गाय ले छाड़ सकल जंजाल। ते जो उपजे, जो भी चीज क्रिएट हुई है, उनने डेफिनेटली एक दिन बिनस जाना है, उनने एक ना एक दिन खत्म जरूर होना है। चाहे आज के काल का मतलब इट्स ए फंक्शन ऑफ टाइम, एनीथिंग विच इज क्रिएटेड इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जो उपजो सो बिनस है परो आज के काल। तो कह रहे हैं इतनी गहराई में जाके तुसी अगर बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे कि कितने बिलियन ईयर्स बच गया की है, जो भी कर रहे हो कहते वो तुसी उस जंजाल तो जो भी कर रहे हो ਤੁਹਾਡਾ हो सकता है एक शौक होए जो भी होए, पर ਉਹਦੇ हरि ਦੇ उसी ਦੇ गुण गान च लग गया तो ਤੁਹਾਨੂੰ अपने आप बहुत कुछ पता लग जाएगा। हर गुण गायला इन्हां जंजाल तो बाद भी तुसी पता लगा दोगे। So basically universe will perish one day, it's a fact। तो साइंटिफिक व्यू भी यही है कि ऑल लिमिनस बॉडीज आर लूजिंग देयर एनर्जी। साइंटिफिक व्यू ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ वन ऑफ देम इज बिग क्रंच थ्योरी। मतलब कि बिग क्रंच की एक ना एक दिन यूनिवर्स जिवें बिग बैंग ਨਾਲ शुरू होया सी, बिग क्रंच ਨਾਲ खत्म होकर टोटली गायब हो जाएगा। और ਅਸੀਂ कभी शायद इस चीज़ ਨੂੰ बिलीव भी नहीं कर सकते कि ਜਿਹੜੀ इतनी चीज़ां दिख रही मतलब एक गायब कितने हो जाएंगियां। एंड साडे लिए एक बहुत वड्डियां वड्डियां मिस्ट्रीज है जिन्होंने ਅਸੀਂ समझ नहीं पाते, पर इस रियलिटी ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ मन के चलना पेगा कि ये जो श्लोक भी लिखा है ये सिर्फ इंसान के जमन या मरण लिए नहीं लिखा गया, ये पूरी सृष्टि के लिए लिखा है, क्योंकि जो उपजो सो बिनस है। तो बहुत ही डीप थॉट्स, बहुत ही डीप सेंस के नाल गुरु साहबान सानू बड़िया वड्डियां वड्डियां चीज़ां दस रहे हैं। और साइंटिफिक व्यू भी यही है कि ये यूनिवर्स एक दिन पैरिश हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। एक सवाल है कि इज देयर ओनली वन यूनिवर्स एंड इज देयर लाइफ ओनली ऑन अर्थ, कि सिर्फ एको यूनिवर्स है या जो जिंदगी है वो सिर्फ अर्थ के उत्ते ही है। ते इत्थे जो गुरु साहबान का फरमान है, कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी सरब जियां का दाता रे, कि वो करोड़ों ब्रह्मंडा का ठाकुर है, एक ब्रह्मंड का नहीं। वो मिलियंस ऑफ यूनिवर्स द लॉर्ड है। गॉड इज मास्टर एंड लॉर्ड ऑफ मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस एंड ही इज द ओनली गिवर टू ऑल द क्रीचर्स ऑन ऑल दीज। इन्हां सारे के जितने भी जी हैं ठाकुर स्वामी सरब जियां, ये सरब जियां इसनूं लिंक किया गया कोटा ब्रह्मंडा नाल, कि जितने भी ना कोटा ब्रह्मंडा के जी हैं उन्हां दा भी इक्को ही परमात्मा है। ये नहीं कि इस यूनिवर्स का परमात्मा वखरा है दूसरे यूनिवर्स का। पहली गल तो सानू तो एक यूनिवर्स के बारे भी सोचते कई बार समझ नहीं आती कि यूनिवर्स के बारे असीं सोच नहीं पाते। और इत्थे गुरु साहबान कोट ब्रह्मंडा की गल कर रहे हैं। वो कहते प्रतिपाले नित सार संभाले, एक गुण नहीं मूरत जाता रहे। वो प्रतिपाल कर रहा, सब की संभाल कर रहा। और अगर असीं ये भी क्लेम कर दीए कि सानू उसका एक गुण भी पूरी तरह समझ आ गया तो साडी मूर्खता होएगी, क्योंकि इतने ही वड्डे पसारे लिए उसके बेअंत बेअंत गुण हैं कि असीं कभी भी उन्होंने भी नहीं समझ पावांगे। उसदियां क्वालिटीज़ नूं, उसदियां पावर्स नूं, उसदे खलेरे नूं, उसदा सब कुछ जो है वो जे तुसीं जपजी साहब भी अगर असीं पढ़दे हां तो जगह जगह ते बेअंत आंदा है। मतलब गुरु साहब पौड़ी कोई शुरू करते हैं आखिर फिर बेअंत के अगे चले जाते, फिर शुरू करते हैं फिर बेअंत कह के अगे चले जाते हैं। गुरु साहब पूरी तरह रचे हुए हैं उसकी बेअंतता दे विच, उहदे पूरे क्रिएशन दे विच जिन्हों समझ पा रहे हैं। तो गुरबाणी का तो व्यू पहले तो ही सी कि लाइफ एग्जिस्ट ऑन मैनी मैनी प्लैनेट्स रादर मिलियंस ऑफ प्लैनेट गुरु साहब के वेले तो सी। और हुण असीं अगे देखते हैं कि थोड़ा जिहा साइंटिफिक व्यू इन्हां दो चीज़ों के बारे की है। और साइंस कहती है कि जो साडा वाला यूनिवर्स है असीं उन्होंने भी कभी भी पूरा नहीं जान सकांगे।
ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ हैं, उन्होंने मल्टीवर्स थ्योरी, ਹਿਊਗ ਐਵਰਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਵਰਸ ਥਿਊਰੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨਹੀਂ, देयर कैन बी मल्टीपल यूनिवर्सिस। और ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਫ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੰਬਰ ਉਹ 1 ऑक्टिलियन है। मतलब अजे तक जी इन्हों के कितनियां बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज विच बिलियंस ऑफ स्टार्स इन्हों के अगे प्लैनेट्स। 1 ऑक्टिलियन मीनस साडे जो जिस यूनीवर्स असी रह रहे हैं, साइंटिस्ट का विचार है कि उहदे विच एक तो बाद 24 जीरो लगा दो, इतने प्लैनेट्स ते हैं। एंड उन्हां विचों अगर 1 बिलियन प्लैनेट्स दे विचों 1 अरब दे विचों सिर्फ एक प्लैनेट ते भी मान लो अगर लाइफ है, जो कि एक तो बहुत ज़्यादा होंगे, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 1 ਲੱਖ ਅਰਬ ਪਲੈਨਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਪਲੈਨਟਸ ਤੇ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੂਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾकुर स्वामी ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਰਹੇ। तो ये जितनी साइंटिफिक है, जो साइंस व्यूज़ आ रहे हैं नवे लेटेस्ट आ रहे हैं, वो सब दे सब अप्रूव हो रहे हैं गुरबाणी के थ्रू। और सब कुछ है गुरबाणी के विच, मतलब सानू कहने की लोड़ नहीं, सामने लिखा ही होया। हुण असी वो गल करते हैं द कॉन्सैप्ट्स दैट बाइंड अस टुगेदर, जिन्हां दे नाल असी सारे मतलब इकट्ठे रह पाए कि डिसइंटीग्रेट होकर खत्म नहीं हो गया यूनिवर्स। एंड असी उहदे च 1-2 कॉन्सैप्ट्स लवांगे, जिवें कि पहला वे काउंटर बैलेंस फोर्सिस का। एंड काउंटर बैलेंस फोर्सिस विच असी जदों चौपाई साहब पढ़ते हैं तो उहदे च आंदा, जब उदकरख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। इत्थे जो उदकरक है उहदा मतलब है रिपल्सिव, एंड जो आकरक है उहदा मीनिंग है अट्रैक्टिव। कहते परमात्मा जब तेरिया रिपल्सिव फोर्सिस लगी हैं, जब उदकरख करा कर तारा, ते उदा जो एंड रिजल्ट सी प्रजा धरत तब देह अपारा, अपारा धरतियां दे उत्ते लोग आने शुरू हुए, क्योंकि कई सारे प्लैनेट्स बने। वो चलते चलते अपने अपने सन तो इतनी दूर चले गए जिथे इतना टैंपरेचर सी कि उत्थे जीव रह सकते हैं। और वो कह रहे कि जदों अजे देखिए कि यूनीवर्स एक्सपैंड हो रहा है और एक्सपैंड अजे भी होंदा चला जा रहा है। एक टाइम आएगा जदों एक कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होएगा, जदों ये रिपल्सिव फोर्सिस जड़ियां अट्रैक्टिव फोर्सिस बन जाएंगी। तो जो आकर्क है उसका मीनिंग है अट्रैक्शन। जब आकर्क करत हो कब हूँ, वो जदों वक्त आएगा, कब हूँ मतलब जदों वक्त आएगा कि जदों अट्रैक्टिव फोर्सिस बदलेगा, तो वो मैं मिलत देह धर सब हूँ, वापस सब तुहाडे अंदर आके मिल जाएंगे। ताकि सारा का सारा वो एक व्यू पॉइंट है जिन्होंने एक्सप्रैस कर रहे हैं, जो जीव जंतु उसकी क्रिएशन ने सारी वैरायटी। एक समा ऐसा भी आएगा वो जिथे भी ने जेड़े भी प्लैनेट पे ने उन्होंने परमात्मा के अंदर जीरो हो जाना। और टाइप है कि इस टाइम जो यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है और रिपल्सिव फोर्सेस लगी हैं, असि एक दूसरे तो दूर, एक स्टार दूसरे स्टार दूर जा रहा है। जब तक बिग बैंग करोड़ साल जदों का फैल रहा, अजे तक फैल ही रहा है, और जदों फैलना रुकेगा तो ये वापस कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होएगा, वापस जाना शुरू हो जाएगा। और इनू इस तरह समझा जा सकता है कि जिवें असीं गेंद उन्होंने फोर्स लगा के बहुत उच्चा आसमान तो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होएगी, फिर एक जगह रुक जाएगी और फिर मुड़ के वापस आके साढ़े हाथ से जिस स्पीड पे छड़ी सी उसी स्पीड पे वापस आ जाएगी। तो बहुत सिंपलीफाइड वे है एक्सप्लेन करने का कि इसी तरह का कुछ हो रहा है।
ਔਰ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫੈਲ ਕੇ ਹਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਫਾउंटेन ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੇ हैं, कुछ कुछ उसी तरह का फैलाव है और ये वापस घूम के वापस डिफरेंट डायरेक्शन तो इन्होंने आके दोबारा मिलना है। ये भी एक टाइप का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है एक पेपर के अंदर। तो रिपल्सिव फोर्सेस ऑफ जो एक्सपेंशन है कुछ इस नेचर की है। लाइट डज मून हैज लाइट इनफैक्ट जो गुरु साहब ने बहुत वड्डियां वड्डियां सानू क्रिएशन बारे गल्लां दसियां, ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਬਿਗ ਕਰੰਚ ਬਾਰੇ, ਆਫਟਰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੂਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋਏ ਦੀਪਕ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਅਰਥ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਦੀਵੇ ਨੇ। ਸੱਸ ਘਰ ਸੂਰ ਸਮਾਏਂਦਾ, ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੂਰਜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੀਪਕ ਜਲਦਾ ਰਹੇ। तो बहुत ही प्यारे वर्ड्स ने ये 4-5 अलग अलग शब्द आए हैं जिससे सिमिलर व्यूज एक्सप्रेस किए हैं। तो गुरु साहब ने आज तो पहले ही दस दिता कि चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं है और जितनी भी रोशनी वो है भी सूरज है, ये भी बड़ा क्लियर किया। ये चीज़ां तो बहुत ही छोटियां हैं जो गुरु साहब ने साडे सैलेस्टियल बॉडी या अर्थ बारे या होर जो भी दसियां। वो प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन है, हालांकि इसका मीनिंग कई जगह कोई डिफरेंट किया जाता है, बट अगर असं साइंटिफिक वो देखिए तो वह है भै विच धरती दबी भार। जो ग्रेविटेशन का प्रिंसिपल है कि जेड़े भी दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने वाले एक दूसरे को खिंच रहे हैं, पर वो फोर्स इतनी छोटी होती है कि वो असी मूवमेंट नहीं देख पाते। तो अगर कुछ ऐसा किया जाए कि जो एक ऑब्जेक्ट है उहदे नाल सारी चीज़ां जोड़ते जाइए उन्होंने बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बना दिए तो फिर सानू ग्रेविटेशन जिहड़ी है दिखनी शुरू हो जाती है। वही है कि जो असीं अर्थ से देखते हैं जिहड़ी चीज़ छोड़ते हैं वापस अर्थ पर आ जाती है। एक छोटा असीं कोई चीज़ सुट्टी उपर या जो चीज़ असीं चुकी हुई है हाथ में और नीचे एक अर्थ है पूरी की पूरी, तो एक ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा एक बहुत छोटा, इस करके सानू ग्रेविटी नज़र आनी शुरू हो जाती है। बट अगर असीं दो छोटे ऑब्जेक्ट देखिए है उन्होंने अंदर भी ये फोर्स पर वो दिखाई नहीं देती। तो गुरु साहब कहते हैं भै विच धरती दबी, भै मीनस उहदे हुक्म विच उहदे सिस्टम दे विच धरती दबी मीनस धरती कंपैक्ट और वेट का कॉन्सैप्ट सामने आया। दबी भार जो दब गई तो जो वेट का कॉन्सैप्ट है जिन्होंने असीं F=mg कहते हैं, तो जो धरती के वड्डे करके क्योंकि वो कॉम्पैक्ट हो चुकी है साडे कोल जो वेट का कॉन्सैप्ट है वो भी सामने आया है। So in his order, Earth is compacted, resulting in gravitational pull. The concept of weight, जो साइंस के स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। और अगर असीं देखिए अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी, इतने गुरु साहब फरमाते ने 1360 अंक पे परमाणु पर्यंत आकाश है दीप लो सिखंडना है, गछेण नैण भारेण नानक बिना साधु न सिद्धते। परमाणु कहते ने किसी भी मैटर की छोटे तो छोटा जो भी है उन्होंने एटम कहते हैं, उसी परमाणु की गल कर रहे हैं, उसकी शक्ति की पर्यंत उसकी शक्ति है। परमाणु पर्यंत आकाश है दीप लो सिखंडने, कहते आकाश की स्पेस दे विच जाके तुसी दीपां ते दूसरे लोहां ते होर कई होर शिखरां ते पहुंच सकते हो। परमाणु पर्यंत आकाश है दीप लो सिखंडने, उन्हां दे उत्ते पहुंच सकते हो। गछेण नैण भारेण नानक कहते होएगा भी पलक झपकण दे नाल भी तुसी एक दिन उत्थे पहुंच जाओगे। गछेण मतलब जाना, नैण भारेण मतलब एक पलक झपकना, उतनी थोड़ी जे टाइम दे विच एटॉमिक पावर यूज करके हो सकता तुसी एक दिन दूसरे दीपां ते लोहां ते उन्हां दे शिखंडां ते पहुंच जाओ नानक। बट अगे की कहते बिना साधु न सिद्धे ते, इतनियां ऊंचाइयां पाने तो बाद भी अगर तुसी बिल्कुल सिंपल इंसान नहीं होगे तो अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाओगे। तो इन्हां सारियां दे पहुंच के अपने आप को सिद्ध करने की अगर कोशिश कर रहे हो तो अपने आप को बिल्कुल सिंपल सादगी के विचकार भी सिद्ध करना सीखो, क्योंकि ये नाल दे नाल ही कंबाइन कर रहे हैं कि इहदे नाल तुहाडी अकड़ कि असीं साइंस ने इन्ना पा लिया असीं इत्थे पहुंच गए ये हो गया कहते, बट जो अल्टीमेट है तुहानूं मिलना है वो तुहानूं सिंपलिसिटी दे विचों ही मिलना है। तो जो साइंटिफिक व्यू है, साइंस ऑल्सो नोज कि असीं एटॉमिक पावर ਨੂੰ यूज़ कर रहे हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ पावर जनरेट कर रहे हैं, हालांकि गलत तरीके ਨਾਲ भी पावर यूज़ हुई है और अगे हो सकती है, और इस पावर ਨੂੰ फर्दर यूज़ करके और कई तरीके ਨਾਲ
देखेंगे कि साइंस यूज करने जा रही है। तो इस क्रिएशन इज साइक्लिक एक्शन कि ये जो सृष्टि बनी थी वो साइक्लिक है कि वो दोबारा आएगी। अगर मान लो असं कहते एक दिन खत्म हो जाएगी तो कि वो फिर तो दोबारा शुरू होएगी। तो गुरु साहब का फरमान है, कई बार पसरियो पासार सदा सदा एक कंकार। कहते एक बार नहीं, ये पसारा तो पता नहीं कितनी बार बढ़ चुका है और हमेशा सिर्फ तो सिर्फ वही एक कंकार से। एक कंकार इतने जोड़ देंगे ने, एक क्रिएटर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ क्रिएशन। एक कंकार मीन्स क्रिएटर एंड क्रिएशन पुट टुगेदर, वो एक ही है। तो कई बार पसरे वो जो पसरे और कई बार पसरेगा भी, कई बार होएगा, एक हमेशा कभी भी कम होने वाली चीज़ नहीं है। तो ये सी साडा पार्ट 1 जिहदे विच असीं कुछ साइंटिफिक न्यूज़ लैके चले हैं। थोड़ा जिहा असीं लेट हो गए और ये टॉपिक जिहड़ा हालांकि जिहड़ा साडा मॉड्यूल 1 है उन्होंने बाकियां ने भी कहा थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि बैक समझने की मुश्किल आती है, पर असीं कोशिश की है कि उन्हें सिंपलेस्ट वे नाल एक्सप्लेन किया जाए। पार्ट 1 की पार्ट 2 है, उहदे विच असीं लाइफ दे इवोल्यूशन बारे गुरबाणी दे की विचार हैं और किस तरह होर कई सानूं सेध मिलणगियां लाइफ के बारे, वो असी पार्ट 2 साइंस एंड गुरबाणी कंटिन्यू रहेगा। पार्ट 2 ये मॉड्यूल 1 का पार्ट है, पर मॉड्यूल 2 ऑनवर्ड साइंस नहीं है। फिर जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं असी उन्होंने दे नाल कोरिलेट किया। तो हुण तुसीं अपने नूं जिन्हें कोई क्वेश्चन पूछना है अनम्यूट कर सकते हो और क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी वीर जी, it was very well covered the whole topic and lot of depth। एक ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡ ਕਰਨ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈਗਾ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕੋ ਕਵਾਓ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਏਗੀ, एवरीथिंग प्रॉबेबली जो जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि भाई जिवें सब कुछ वाहिगुरू ने तां जिहड़ी नॉलेज है इक्को वारी ही दे दित्ती है, पर साडी मत हाले उत्थे तक नहीं पहुंची। जिवें जिवें साडी मत नूं समझ आंदी है असी ਉਹ डिस्कवर करी जा रहे टाइम दे नाल, बट द नॉलेज वाज क्रिएटेड इन वन कवाओ, इक्को कवाओ च हो गया सीगा। तो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਹੈਵ ਦਿਸ 2 ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ। ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਭ੍ਰਮ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਗਦਾਦ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਹੀ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 10 ਕਿ 14 ਬਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਲੈਵਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜੋ ਜੰਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਟੋਟਲੀ ਅਵੇਅਰ। ਤੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹਵੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਤ ਹੈਗਾ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਈਫ ਫਾਰਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪਸ ਬਿਯੋਂਡ ਆਵਰ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਈਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਸਮਵੇਅਰ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਏਦਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਈਵਨ ਦੈਨ ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਬਿਲੀਵ ਅੰਟਿਲ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਵਾਟਸ ਯੋਰ ਟੇਕ ਔਨ ਦਿਸ? ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ मेरा पहला क्वेश्चन थोड़ा एको कवाओ तुसी। इनफैक्ट गुरबाणी बहुत सारे शब्द ने जेड़े वर्ड शब्द है, हुक्म है, कवाओ है और नाम है, इन्हां सारे नूं असीं इंटीग्रेट करके देखना, उसी दी पावर नूं ही रिप्रेजेंट कर रहे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਪਿਛ ਪਾਇਆ ਸੂ ਏਕਾ ਵਾਰ। परमात्मा ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਪਲੈਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੋ ਭੇਜ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। From Big Bang, probably I think we can explain everything. But from the nothingness, how Big Bang came in that nanosecond, that he says is unable to explain. That's the only thing which is uncertain for him. But because then when this Darwin's theory evolution came, people were so that now we can explain everything. If God is not there, we are sure that we can explain. That's the thing about century back, probably he postulated his theory of evolution. But still we see that nothing is there. So right from beginning of mankind, man has been always his endeavor to learn about the ultimate truth. He's going on and on and on, and on the way, so many byproducts, so many discoveries have been there, so many investments have been there, which is a result of his continuous search for ultimate truth, but it is not coming at all. Now we see we are coming to this thing that goes on. It's a miracle that we are coming to the ultimate truth. Now we are coming to the ultimate truth now, but man is limited by his intelligence. That intelligence, he cannot approach because which is not possible at all. So I think we have to understand in that search of the ultimate, so many things. Now we have got this virus which we don't understand. So this artificial intelligence is not led anywhere. It is only जो डिफरेंस है ना कि बिग बैंग तो पहला कुछ नहीं सी, वो मनते ने। गुरबाणी भी मनती है कुछ पारा, ये कहना कि उस तो पहले साइंटिफिकली नहीं एक्सप्लेन की जा सकती, इतना को डिफरेंस रहेगा। और ये गुरु साहब कह रहे हैं वो डिवाइन फोर्स तां भी सी, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਮਪਟੀਨੈਸ ਸੀ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਪੇਸ, ਸਪੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ 1907 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ and then we do not know. In fact ਇੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਜ਼ ਗॉड ਡੈਡ।
कि उन्हें बड़े सारे साइंटिस्ट के इंटरव्यू भी दिते कि असं हूँ थोड़े टाइम बाद सारे फैक्ट्स खोलन जा रहे हैं, हूँ सब कुछ दस देंगे कि जो तुम कहते हो रब ने बनाया है कि तो विदिन 15-20 ईयर्स वी विल डू इट। पर 1980 में जो सेम कॉनक्लेव हुई साइंटिस्ट की, उन्होंने सब मंगी सी कि साडी जो प्रॉब्लम सी उस नाल ज़्यादा कॉम्पलैक्स हो चुकी है। ਅਸੀਂ गलत सा उस वेले, सानू कुछ नहीं सी पता, पहले पता सी उस नाल भी हुण घट पता है। सो दे वर आई मीन वेरी नाइस पीपल दोज हू एडमिटेड इट। ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕਾਲ ਸਾਗਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੇਟੈਸਟ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਮਪਟੀਨੈਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? तो कुछ तो है जो साडी पकड़ च नहीं आ रहा, शायद उन्होंने नहीं पा पाएगी। दैट्स ऑल आई थिंक टेक ऑन दिस। कोई और क्वेश्चन है जी? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं हुणे जो सुन रहा सी, तुसी एक बड़ी चंगी गल कीती सरनजीत सिंह जी, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर टू बी डिस्कवर्ड। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਈਡ ਮਲਟੀਵਰਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮਲਟੀਵਰਸ ਤੇ ਖਾਲੀ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਅਰਥ ਵੀ knowledge is there। what I feel कि जदों साडी गुरबाणी दा अवस्था बनदी है, so vast, this is my take that but as we go, as अवस्था उठी जाएगी, सानू सिर्फ ये पता लग जाएगा कि साडी लिमिटेशन कितनी है। then एक ये अवस्था आएगी जिथे सानू पता लगा कि साडी लिमिटेशन इतनी ज्यादा है। जिस तरह तुसी नॉलेज बहुत वास्ट है, साइंटिस्ट कह रहे हैं जिन्नी सोची, पर मत, क्योंकि पता लग जाएगा साडी मत दी लिमिटेशन बहुत घट, बहुत ज्यादा है। सो वी कैन नॉट रीच। जिद्दन वो मत छड्डी जाएगी उस तो बाद फुल सरेंडर होएगा। देन वी टॉक अबाउट मोक्ष या जो मुक्ति दी गल्लां होणगियां। सो व्हाट आई फील, क्योंकि जिन्ने बड़े कथाकार या कई जगह तो मैं सुनिया है कि व्हेन दे रीच देयर पिनेकल then they start saying ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। realization comes that I have talked too much and I don't know anything, because ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈਗਾ to know and know। ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਘੱਟ, ਮੈਂ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗੇਨ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਸਾਰੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ what I know is not even an iota of the entire knowledge। that realization will put my home down that I cannot achieve this much। So at that point, I will leave myself, surrender myself to Ram। And that is the time when the true, jinu kende hage ki true realization hona, that is the ultimate, jinu kende absolute truth, that will be revealed to us। And that is the point when we will, when we will be free of, and that will be the point when our journey will start। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े बहुत सोहने विचार हैं वीर जी। और एक्चुअली की है कि ये मन च जिज्ञासा है तो अपने नूं रोक नहीं लेना चाहिए। ये विचार गुरु साहब ने भी कहा कि जरूर विचारो, और जितना को असी मतलब सिर मार के फिर सरेंडर करिए, वो होर ज़्यादा उसका बैटर भी इंपैक्ट होता है कि बहुत मेहनत कर ली ना, हुण जाके असी सरेंडर करते हैं। जो बिना तुसी मेहनत की सरेंडर भी कर दो शायद उसका इंपैक्ट भी घट होता है। इस करके अगर जिज्ञासा आ गई है तो आ लेन दो, कोई नहीं। जितना कुछ जान सके, जितना गुरबाणी के आधार पर समझ आता है जो भी है, तो जो समझ ज़्यादा सानू अच्छा लगता है कि जो साइंटिफिक डिस्कवरीज होंदियां जा रही हैं, तो गुरबाणी के भी कई सारे भेद हुण खुल रहे हैं। और जो अज तो पहले दी जनरेशन सी, उन्होंने बड़ी सिंपलिसिटी लिया होएगा, क्योंकि उन्होंने कोई चैलेंज करने का उस टाइम से ज़्यादा सिस्टम नहीं सी। तो जो वड्डियां ने कहा ठीक रस्ता, पर अज के बच्चे क्योंकि चैलेंज करते हैं और साढ़े को जवाब भी हैं, तो बहुत जरूरी है कि असी उन्होंने पूरी तरह समझिए। और असी जो अगे भी मॉड्यूल्स आ रहे हैं उहदे बहुत सारे क्वेश्चंस ले हैं, जोड़े बाकी सब्जेक्ट्स नाल जो लेटेस्ट साडियां थ्योरीज हैं,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੀਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋਏ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਕਮ ਫਾਰਵਰਡ ਐਂਡ ਟੇਕ ਇਟ ਫਾਰਵਰਡ। हाँ, मैं इको लाइन च खाली इनू खत्म करांगा कि एदा एकदम ये मतलब नहीं है कि असि नॉलेज ना गेन करिए। इन फैक्ट टू रीच दैट स्टेट जदों सानू ये रियलाइजेशन होएगी द पाथ इज थ्रू दिस नॉलेज ओनली। करेक्ट। ये भी है जेडी यंग जनरेशन है वो ये चीज that point where the divine knowledge will come. So I am always with the knowledge to gain it, to reach that point when you will know. हाँ जी बिल्कुल। To reach that अवस्था when you realize this. मैं जी तो एक साइंटिस्ट का नाम ही दसांगा, उन्हें रिसेंटली किया एक्चुअली साइंस इज द स्टडी ऑफ गॉड। बड़ी अजीब जी गल लगी। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਫਟਰ ਡਿਵਾਈਨ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਣਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਤਨੇ ਤੱਕ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਹੈਲਪਿੰਗ ਅਸ ਟੂ ਨੋ ਵਟ ਦ ਡਿਵਾਈਨ ਪਾਵਰ ਇਜ਼। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ? साहब वाहिगुरु जी की फतेह। मेरी आवाज आ रही? हाँ जी आ रही। मैं बस खाली विचार साझे तुहाडे नाल करना सी कि तुसी बहुत ही गहराई दे विच सानू मतलब दस्सिया और बहुत ही आनंद आया कि कितना पहलू गुरु ग्रंथ साहब जी। मैं इत्थे तुहानू इंटरप्ट करांगा जदों भी तुसी कहो, क्योंकि गुरु नानक साहब ने सानू कितना गहराई च दस्सिया। गहराई च सर प्लीज साडे किसी इंसान नू ये क्रेडिट नहीं दिओ प्लीज सर। गल है कि एक गुरु नानक दी फिलॉसफी मनुष्य जन्म विच आके जिहड़ी असी लई और ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ 1400 ਜਿਹੜੇ 30 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਗ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟਲੀ ਸੈਡ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ not to conclude immediately without any study। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਗਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਬਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਪਾਰ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਤਿਸ ਤੇ ਪਾਰ ਤਲੇ ਕਮਨ ਛੋਰ, ਧੋਲ ਧਰਮ ਦਿਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨਸੂਤ, ਜੇ ਚਾਰ ਡਬਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਪਾਰ। You know, all these question answer which Guru Nanak is debating, perhaps ਉਹ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो मतलब पाताला पाताल, लाका गाशा आकाश, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਕਨੈਕਟਡ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਨ ਦੀ ਟਰਮਸ ਆਫ ਸਰੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਅਸ ਐਜ਼ ਅ KG ਸਟੂਡੈਂਟ, we have to learn the process of Guru Nanak, where ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਇਟਸੈਲਫ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਗਰ if we the creation can understand the creator and go back to the creator, and as we are part of the creation, ਜੋ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਨਵ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇ ਵੱਡ ਚੀਰਾ ਰਹੋ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं कि सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कह ना जाई तेरी तिल वडियाई। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ
ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਗਰ ਤਿਲ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤਿਲ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ the critic mind of the young people will get attached with Gurbani, that Gurbani is not a myth, it is a scientific production of Guru Nanak which was given to us 500 years back। बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी। एंड और बाकी जरे क्वेश्चन कर लें तो उस तो बाद मैं 1 मिनट लवांगा ताकि अगले वेबिनार दे विच गल कर पांगे। ओवर टू वीर जी, स्वरनजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद।